is thermodynamics. Already I have seen that first law of thermodynamics. Let's see again thermodynamics. Already I have seen first law of thermodynamics. In first law of thermodynamics in physics, we have seen dq is equal du plus dw. dq is equal du plus dw. This is what first law of thermodynamics. By using this first law of thermodynamics, we have to derive again another important formula, Mayer's formula, or relation between Cp and Cv. Write down Mayer's formula, write down Mayer's formula or relation between Cp and Cv. Write down Mayer's formula, लिखो Mayer's formula, Mayer's formula, Mayer's formula or relation between Cp and Cv. और रिलेशन बिटवीन व्हाट Cp एंड Cv. Cp Cv क्या बताया था? Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, molar specific heat at constant pressure, and Cv is the molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant volume. Understand this? Or this is what Cp minus Cv is equal R. R is the universal gas constant. R is the universal gas constant. Cp minus Cv is equal R. I have to derive all this. Cp minus Cb is equal R. I have to derive this. Clear? Mayer's formula. Very important formula. Very important formula. ये कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर में होगा. दो निकालना पड़ेगा मुझे. लेट्स सी वन बाय वन. राइट डाउन. लिखो. लेट 1 mole of an ideal gas is taken. Let 1 mole of an ideal gas is taken. Let 1 mole of an ideal gas is taken and the process takes place in the following conditions. And the process takes place in the following conditions. And the process takes place in the following conditions. What is the condition? First is at constant volume. At constant volume, suppose the process takes place at constant volume. Volume is constant. अरे यहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन कितना होगा? अरे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन कितना होगा? बोलो. अरे आर्य कुमार बोलो. If volume is constant, what is the work done? आर्य कुमार. अरे क्या आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब सृष्टि क्या है? If volume is constant, what will happen? हेलो सृष्टि बोलो. Zero. Zero. Work done is zero. अरे Zero. volume constant means work done zero. Clear? At constant volume the process takes place. Write down. Write down at constant volume. लिखो. From first law of thermodynamics. लिखो. From first law of thermodynamics, it is given that dq is equal du plus dw, or dq is equal du plus tdv, where du is the change in internal energy. Where du is the change in internal energy. Write down. Where du is the change in internal energy. Write down. At constant volume, dv is equal 0. At constant volume dv is equal 0. Constant volume dv is equal 0. Therefore, अरे कांस्टेंट वॉल्यूम में dv क्या है? वर्क डन 0, dv 0, therefore work done 0. Therefore what will happen? dq is equal du. Means the internal energy is nothing but change in internal energy is nothing but what? The heat supplied. Heat supplied at constant volume. At constant volume the heat supply is this much. Clear? dq is equal du. Now what is dq here? How much will get dq? अरे dq is what? अरे what is dq? How much will get the dq? Constant volume में dq कितना आएगा? Yes? Any idea about constant volume? What is dq?
डी क्यू में क्या आएगा बोलो? अरे क्यू, डी क्यू इज इक्वल व्हाट? डी क्यू इज इक्वल एम एस डी टी। अरे समझ में आया? एम एस डी टी। तो फॉर वन मोल ऑफ द गैस, अगर वन मोल, मोल अगर डिवाइड करोगे वन मोल एस बाई म्यू, एस बाई म्यू, तो डी क्यू क्या आएगा? डी क्यू एस बाई म्यू इज व्हाट? सी वी, सी वी डी टी आएगा। अरे दिस इज सी वी डी टी। Cv is the what? Molar specific heat at constant volume. अरे dq क्या आएगा? dq is equal ms dt for one mole of gas, ms by mu। अगर ये करोगे तो क्या आएगा? ms by mu is your what? Cv। अरे s by mu is the क्या? s by mu बताया था। अरे s by mu is the c ना। दिस इज मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, s by mu। अरे s by mu इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखे हुए कॉपी में देखो, स्पेसिफिक हीट पढ़ाया इमीडिएटली, सी के बारे में पढ़ाया था। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, लिखवाया ना? हेलो, अरे सब पढ़े थे ना हम लोग? अरे सीपीसीबी पढ़े थे ना? स्पेसिफिक जी हीट एस के इमीडिएटली बाद सी लिखवाया, देखो सीपी एंड सीबी। तो यहीं पे जो एस बाई म्यू, ये तो 1 है, सपोज 1 ग्राम के लिए मैं ले रहा हूँ, एस एस बाई म्यू इज द सी। यहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम में लिया तो सीबी डी टी होगा, तो डी क्यू इज सीबी डी टी। तो डी यू इज इक्वल डी क्यू के जगह मैं लिखूंगा सीवी डी टी, सीवी डी टी लिखो। वेयर सीवी इज द, राइट डाउन, वेयर सीबी इज द, where Cb is the molar specific heat at constant volume, where Cb is the molar specific heat at constant volume। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, molar specific heat at constant volume। Next, number 2, at constant pressure, let the process takes place at constant pressure, at constant pressure। When the process takes place at constant pressure, what will happen? लिखो, from first law of thermodynamics, from first law of thermodynamics, what? dq is equal du plus dw, or dq is equal du plus dw is your pdv। now dq is equal cp dt, वैसे ही निकालोगे। ये जैसे मैंने निकाला cv dt, dq क्या होगा? cp dt होगा। dq तो लिखो, dq is a cp dt, cp dt, where cp is the, where cp is the molar specific heat capacity at constant pressure, where Cp is the molar specific heat capacity at constant pressure, at constant pressure, where Cp is the molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant pressure। अरे समझ में आ रहा है सभी को या प्रॉब्लम हो रहा है? अरे समझ में आ रहा है सभी को या प्रॉब्लम हो रहा है? अंडरस्टैंड दिस। तो डी यू इज इक्वल सी पी डी टी माइनस पी डी वी। अभी ये डी वी को कन्वर्ट करना है डी टी में, क्योंकि इसमें भी डी टी है मेरा, इसमें भी डी टी है, एंड इक्वेशन 2 में भी डी टी है। ये पी डी वी को डी टी में कन्वर्ट करना है। कैसे? लिखो, फॉर वन मोल ऑफ गैस, फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस, व्हाट विल हैपन? पीवी इज इक्वल आरटी। यहीं पे प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों साइड टेम्परेचर का डेरिवेटिव लूंगा, दोनों साइड, दोनों साइड टेम्परेचर का डेरिवेटिव लूंगा। क्यों टेम्परेचर का लूंगा मैं? क्यों? बिकॉज टेम्परेचर चाहिए मुझे। अरे टेम्परेचर में सब कन्वर्ट करना है ना, इसलिए टेम्परेचर का डेरिवेटिव लूंगा। इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर में बाहर आ गया dv बाई डी टी, एंड यहीं पे r कांस्टेंट बाहर आ गया dt बाई डी टी, dt बाई डी टी कैंसिल हो गया ये। देयरफॉर यहीं पे आ रहा है p dv, यू आर गोइंग टू गेट r dt, p dv इज r dt, p dv इज नोन एज r dt। लिखो इसको। तो आई हैव टू नाउ व्हाट?
replace this PdV. Write down. Thus equation 2 can be written as, write down, equation 2 can be written as, 2 को फिर से लिखो, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को फिर से लिखो. इक्वेशन 2 can be written as what? du is equal Cp dt माइनस पी डीवी के जगह आर dt लिखेंगे. पी डीवी के जगह आर dt लिखेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. This is what? Equation number 3. Now compare this 1 and 3. What will happen? 1 में Cb dt, 3 में Cp dt minus R dt. लिखो. Thus from equation 1 and 3, thus from equation 1 and 3, what will get? 1 में क्या था? Cb dt is equal, 3 में क्या हुआ? Cp dt माइनस आर dt, Cp dt माइनस आर dt, सब dt dt इसलिए डेरिवेटिव करना पड़ा. तो Cb इज इक्वल Cp माइनस आर, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल आर. दिस इज व्हाट मेयर्स फॉर्मूला. Cp माइनस Cb इज इक्वल आर. तो इसमें कौन सा ग्रेटर है? बोलो, विच इज ग्रेटर हियर? सर क्या बोलो? सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए सर, मैं लिख नहीं पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके, राइट डाउन. ये वाला. सर हाँ बोलो बोलो. सर आप वो सीवीडीटी जो लिखे हैं वहाँ पे तो डीयू था, लेकिन हम तो डीक्यू इक्वल्स टू सीवीडीटी डिराइव हुआ था. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या बोल रहे थे? सेट मिल रहा है मेयर फॉर्मूला में. विच इज ग्रेटर? नोट में लिखो, विच इज ग्रेटर. मेयर्स फॉर्मूला में विच इज ग्रेटर, सीपी और सीबी? कौन सा ग्रेटर बोलो? इन मेयर्स फॉर्मूला सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी. राइट डाउन. इन मेयर्स फॉर्मूला सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी, क्योंकि आर पॉजिटिव है ऑलवेज, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो. एंड एक कांस्टेंट मिलेगा सीपी बाई सीबी. Cp बाई Cb एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज नोन एज गामा. ये बहुत बार यूज करोगे इस कॉन्सेप्ट में, ये चैप्टर में. Cp बाई Cb इज ए कांस्टेंट, गामा. गामा इज ए कांस्टेंट. दिस इज व्हाट? ए कांस्टेंट, इसलिए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. गामा इज अ Cp बाय Cb. The ratio is a constant always, and here Cp is greater than Cv. Very very important. Clear? Understand this? समझ में है? नेक्स्ट लिखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस. लिखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस. प्योरली मैथमेटिक्स अभी आने वाला है, 99% मैथ्स. थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस एंड केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों रिलेट होगा अभी. thermodynamics process. Write down. Following are the thermodynamic processes. लिखो, following are the thermodynamic process. Number 1, isothermal process. Number 1, isothermal process. Number 2, adiabatic process. Number 3, isobaric process. Number 4, isochoric process. Number 5, quasi-static process. Quasi-static process. These are what 5 processes are there. All are in chemistry. सब लॉ यहीं पे आ रहे हैं, चारों में पूरा सब लॉज आ रहा है, जितना भी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और कौन सा लॉ है मैं भूल गया. अरे क्या है? केमिस्ट्री. अरे तुम लोग केमिस्ट्री अच्छा करते हैं, बोलो क्या क्या लॉ है, गैसेस लॉ क्या क्या है, बोलो जल्दी. अरे क्या क्या फर्स्ट था? क्या? बॉयल्स लॉ से शुरू हो रहा था ना. अरे बॉयल्स लॉ क्या है? चक्रेश बोलो, बॉयल्स लॉ क्या है? अरे केमिस्ट्री तो मुझे पढ़ाओ जरा. अरे बॉयल्स लॉ क्या है चक्रेश? अरे चक्रेश बोलो, चक्रेश का आवाज बहुत दिनों सालों से नहीं सुना. अरे चक्रेश है क्या? ऑन करके सो गया? हेलो चक्रेश.
अरे चक्रेश आजकल आवाज ही नहीं आ रहा है. हेलो. ओके बोलो दिव्या सर, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? चक्रेश हम बोलो बोलो चक्रेश. अरे आवाज तो दो. अरे चक्रेश. हेलो. अरे बोलो चक्रेश. बॉयल्स लॉ क्या है चक्रेश? हेलो. अरे आवाज नहीं है चक्रेश. बॉयल्स लॉ में क्या है? सुदीप्ता बोलो. सुदीप्ता बोलो बॉयल्स लॉ क्या है? अरे बॉयल्स लॉ तो क्या है बोलो. कौन बता पाएगा? अनिमेश बोलो बॉयल्स लॉ क्या है? अनिमेश. अरे कुछ तो आवाज दो या तो सब सो गए, मैं एक अकेले पढ़ रहा हूँ. यस यस. बॉयल्स लॉ कौन बोलेगा? क्या है बॉयल्स लॉ में? So क्या है? pressure is inversely proportional to volume. वॉल्यूम. वेरी गुड. एडियाबेटिक प्रोसेस और डिफरेंट है, बाद में समझेंगे. आइसोबारिक मतलब व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर है. आइसो मतलब कांस्टेंट है. Constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर. तो कौन सा लॉ आएगा कांस्टेंट प्रेशर में? अरे कांस्टेंट प्रेशर में कौन सा लॉ है? प्रेशर इज कांस्टेंट. यस. केमिस्ट्री में कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ. वेरी गुड. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आइसोबारिक है. आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम है. कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. कौन सा लॉ है? वॉल्यूम कांस्टेंट किस लॉ में है? अरे वॉल्यूम. Boyle's law. बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ. अरे बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल ना, टेम्परेचर कांस्टेंट. अरे टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. बॉयल्स लॉ है. बट वेयर दैट वॉल्यूम कांस्टेंट? Gay-Lussac's law. गैलोजक्स लॉ. वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. सब लॉ यहीं पे आ रहा है. वाह. अरे केमिस्ट्री पढ़ो. ओके लिखो, एक एक करके निकालेंगे. आइसोथर्मल प्रोसेस. लेट्स सी दिस. तो व्हाट इज पीवी डायग्राम? पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम. फिर से बोल रहा हूं देखो. पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम. व्हाट इट इंडिकेट्स? पीवी डायग्राम में क्या है? वॉल्यूम इज टेकन along abscissa and pressure is taken as ordinate. The graphs to obtain is known as PV diagram or indicator diagram. It indicates about work done by the system. Therefore, it is known as indicator diagram. So let's discuss about that. What? Isothermal process. The graph is like this. I am taking a small volume dV, जिसमें pressure is P. Now area of the small region is what? P into dV. P into dV is the small work done by the system. Therefore area of the small area is what? dW. Integrate करो तो पूरा एरिया अंडर द कर्व गिव्स अबाउट वर्क डन. अंडरस्टैंड दिस? ग्राफ ड्रॉ कर दिए सभी? हेलो. अरे ग्राफ ड्रॉ कर दिए? ओके लिखो. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवी डायग्राम. राइट डाउन. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम. Following are the characteristics of PV diagram or indicator diagram. Number one, it may be a straight line or curve. It may be a straight line or curve. Number two, second characteristic, let dV is the small change in volume. Let dV is a small change in volume due to pressure P. dV is a small change in volume due to pressure P. Then work done is given by dW is equal PdV. Work done is given by dW is equal PdV. On integrating both sides, W is equal whole integration of PdV, that is area under the graph. Area under the graph. ग्राफ का नीचे जो एरिया अंडर द ग्राफ. तो वर्क डन इज ऑलवेज
equal to area under the graph, that may be straight line or that may be curve, anything, but area under the graph gives about work done. W is equal area under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ, समझ में है? तो थर्ड पॉइंट में लिखो, राइट डाउन इन थर्ड पॉइंट, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग वर्क डन इज पॉजिटिव, सेम थिंग लिखो, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, थर्ड पॉइंट, वर्क डन इज पॉजिटिव. If volume is increasing, work done is positive. And if volume is decreasing, work done is negative. If volume is decreasing, work done is negative. For constant volume, work done is 0. For constant volume, work done is 0. For constant volume, work done is 0. तो एक एक करके समझेंगे ये ग्राफ में. इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतना ज़्यादा पॉइंट भी लिखवा दिया, तो इसमें एक एक करके समझेंगे क्या है पीवी डायग्राम में. तो एक एक करके समझेंगे, राइट डाउन, नोट करके लिख लो. जो 1 मार्क क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, ये सब एक एक करके हम यूज़ भी करेंगे चैप्टर के अंदर. देखो, मैंने यहीं पे ड्रॉ किया पीवी डायग्राम, एंड ये प्रोसेस ऐसे होगा. यहीं पे वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलो. अरे पीवी डायग्राम ऐसे कर्व में जा रहा है, बताया था, इट मे बी कर्व और स्ट्रेट लाइन, एनीथिंग. सर नेगेटिव होगा वर्क. नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव बोलो. सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. कैसे डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम? मेरा पहला इनिशियल वॉल्यूम ये है ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बोलो. हेलो, अरे ये एरो मार्क दिया ना ऐसे, तो अभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बोलो. अरे मेरा ये इनिशियल वॉल्यूम ये है वी आई, इनिशियल वॉल्यूम वी आई. डिक्रीज हो रहा है ना. क्या हो रहा है? डिक्रीज. डिक्रीज हो रहा है. अरे मेरा ये इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम वी एफ है. तो व्हाट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे प्रोसेस ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है. तो मेरा इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, मेरा फाइनल वॉल्यूम वी एफ है. तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अरे कोई तो बोलो. डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. देखो, अरे ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है. अरे 90% बच्चे बोलते हैं ये डिक्रीज वॉल्यूम है. डिक्रीज वॉल्यूम नहीं है, डिक्रीज प्रेशर है. अरे ये डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज हो रहा है. प्रेशर इनिशियल ये देखो फाइनल है. प्रेशर नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, समझ में आया? अरे समझ में आया? जो आंसर बोला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सभी 90% बोलते हैं डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग नहीं है, देखो इनिशियल ये फाइनल है. तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन क्या होगा? अरे वॉल्यूम इंक्रीजिंग हुआ तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव. हाँ, ये वर्क डन पॉजिटिव. वेरी गुड, वर्क डन इज पॉजिटिव. लिखो, समझ में? बहुत सारे अभी करेंगे ग्राफ. लिखो, एक एक करके लिख लो. सिमिलरली और एक प्रोसेस है, देखो. अभी वही बॉयल्स लॉ वाला प्रोसेस करते हैं. वाह, नहीं तो बॉयल बुरा मान जाएंगे. देखो, ये क्या होगा अभी, बोलो. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अरे क्या है? डिक्रीज. वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं है. अरे ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब बच्चे इंक्रीज सोचते हैं हमेशा. देखो यहीं पे इनिशियल वॉल्यूम, यहीं पे फाइनल वॉल्यूम. अरे वॉल्यूम यहीं पे क्या है, वॉल्यूम को ही लेना है वर्क डन में, और किसी को देखना नहीं है. अरे समझ में? यहीं पे वॉल्यूम वी आई पी है. अंडरस्टैंड दिस? मतलब उसी को लेके ही थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है. समझ में है कि नहीं? वॉल्यूम को ही देखना है. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है. ऑलवेज टेक द वॉल्यूम. यू हैव टू सी वेदर द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसी को ही देखना है. तो ये वॉल्यूम जो है, व्हाट इज दैट? वॉल्यूम इज व्हाट? डिक्रीजिंग. ये इनिशियल वॉल्यूम था, अभी फाइनल वॉल्यूम. वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो वर्क डन क्या होगा? यहीं पे एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क डन क्या होगा? अरे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. लिखो,
वर्क डन इज नेगेटिव। ड्रॉ करो जल्दी। सिमिलरली और एक है, देखो, गो ऑन ड्राइंग ऑल दिस थिंग्स। पीवी ऐसे, ये क्या होगा, प्रोसेस इज व्हाट टेक्स प्लेस अलोंग दिस वन। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो। सर 0। जीरो, आर यू श्योर? जीरो क्यों है? अरे क्यों जीरो है? सर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट, आर यू श्योर? अरे वॉल्यूम सर कांस्टेंट, आर यू श्योर? देखो, फिक्स अरे जीरो में प्रेशर आया, वन में प्रेशर सेम, टू वॉल्यूम में प्रेशर सेम, थ्री वॉल्यूम में प्रेशर सेम, फाइव वॉल्यूम में प्रेशर सेम, तो कौन कांस्टेंट है यहीं पे? सॉरी सर, प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट, वॉल्यूम इज वेरिएबल। अरे वैसे जो बोले ना आंसर, वैसे सभी बोलते, हम भी बोल रहे थे। तो हमारा सर के यहाँ इतना डांट पड़ा, एक डस्टर पकड़े थे, उसको फेंक दिए मेरे ऊपर। समझ में है कि नहीं? पहले बोले वॉल्यूम प्रेशर क्या है, 8 क्लास पढ़ के आओ, समझ में है, उसके बाद 11 पढ़ोगे, इसलिए पूरा याद हो गया। आजकल तो पिटाई विटाई गाली सब बंद हो गया, वाह, समझ में है कि नहीं? तो एक बार मुझे याद हो गया कैसे थर्मोडायनेमिक्स करना है, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ वॉल्यूम को ही देखना है और किसी को देखना नहीं है इसमें, समझ है? देखो, प्रॉब्लम भी करेंगे सिर्फ वॉल्यूम को ही देखोगे, ना प्रेशर ना टेम्परेचर किसको भी देखना नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम को देखोगे। तो यहीं पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बोलो। वॉल्यूम इज व्हाट, इंक्रीजिंग। अगर ऐसे में एरो मार्क लिखो तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब दिस इज वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? तो ये ग्राफ में क्या आ रहा है, देखो, दिस इज व्हाट पी, दिस इज व्हाट वी, अंडरस्टैंड दिस? ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो ये क्या है, बोलो। इसमें क्या है, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे क्या है, सर ये नेगेटिव है। नेगेटिव है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अभी क्लियर हुआ? अरे अभी क्लियर हुआ कैसे वर्क डन निकालना है? वेरी इजी है, वर्क डन इज नेगेटिव, यस देखो, सर। वर्क डन इज नेगेटिव। और एक छूट गया शायद, देखते हैं, लिख दिया सभी, ग्राफ ड्रॉ कर दिए? अरे सब ग्राफ ड्रॉ कर दिए सभी, किए ना चारों का चार? नेक्स्ट और एक है, तो व्हाट इज दैट, दिस इज व्हाट पी, दिस इज व्हाट वी, ऐसे कुछ दिया गया है ग्राफ में। तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क डन हियर? अरे क्या है वर्क डन यहीं पे? 0। जीरो। Sir, क्यों? 0. यहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहीं पे वर्क डन 0 है। वाह, यहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, समझ में आया अभी पीवी डायग्राम क्या है? इंडिकेटर क्यों बोला गया है? बिकॉज इट ऑलवेज इंडिकेट्स द वर्क डन बाय द सिस्टम, it always indicates the work done by the system, therefore it is known as indicator diagram। हुआ क्लियर? हुआ? पीवी डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पीवी डायग्राम के ऊपर बाद में देखेंगे, सभी प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद पीवी डायग्राम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इजीली सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा पीवी डायग्राम में। हुआ? ओके, लेट्स मूव टू दिस फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस वाज थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें वर्क डन निकालेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में my work done, my graph is like this. If I am giving arrow mark here, work done by this process is positive. अगर मैं arrow mark को उल्टा दूं, work done is negative. Understand this? This is what PV diagram. Now, work done in isothermal process. Give the heading there. Work done in isothermal process. In isothermal process. ये 3 मार्क का डेरिवेशन गिरेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, टू टाइप्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस आर देयर, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन डेफिनेटली पॉजिटिव, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है तो डेफिनेटली वर्क डन इज नेगेटिव। तो फर्स्ट आई हैव टू राइट वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। राइट डाउन वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन, work done in isothermal expansion. What is that? Work done in isothermal expansion. Let's see this. Expansion means obviously positive work done will be there because volume is increasing.
देखो work done in isothermal expansion, write down. Let dV is the small change in volume. Let dV is the small change in volume due to pressure P. Due to pressure P. Then work done is given by dW is equal PdV. Then work done is given by dW is equal PdV. Work done is given by dW is equal PdV. Clear? Understand this? Let the process takes place isothermally. Let the process takes place isothermally. Let the process takes place isothermally. Then the expression for isothermal process is given by then the expression for isothermal process is given by then the expressions for isothermal process is given by PV is equal what? Constant. ये isothermal process है, constant. Constant को K ले जाऊंगा. K is a constant. So I can replace P now by this constant. So what is that P is equal K by V? K is known as constant. K is a constant. So P is equal K by V. So I'll replace that P here. Write down. Therefore, dW is equal PdV. Now P is equal K by V into dV. This is what dW. K by V into dV. That is what dW. Now total work done for the expansion of system from V1 to V2. V1 to V2 expand हो रहा है, तो कितना वर्क डन मुझे निकालना है? लिखो. अरे यहीं तक लिख दिए. देखो नेक्स्ट पेज को जाएंगे. लिख दिया तो यस बोलो. ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. हो गया? अगर लिख दिया तो यस बोलो. अच्छी तरह समझ के लिखो पूरा मैथ से. फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स प्योरली मैथमेटिक्स है. इसमें केमिस्ट्री 10%, मैथ्स 90%. फिजिक्स ही नहीं है इसमें. हुआ? हो गया? अरे हो गया ना? लिख दिया? जी. ओके, नेक्स्ट पेज में चलो. नेक्स्ट पेज में चलो. नेक्स्ट पेज है, देखो. तो व्हाट इज दैट हियर? W माइनस 0 इज इक्वल, ये क्या आ रहा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के. अपर लिमिट क्या है? log V2 बेस ई माइनस log V1 बेस ई. So log A minus log B is what? Log A by B. This is what? Log A by B, V2 by V1. This is what E. मेरा K क्या था? K क्या था? अरे K क्या था? K is और PV था, तो डाल देंगे K. K is और PV, तो लिखो K is और PV. PV is और log E, V2 by V1. PV is equal mu RT है. nRT और mu RT. Mu is the number of moles. अरे PV is equal mu RT or nRT. PV is equal mu RT. Mu RT. This is what? Log E V2 by V1. This is what work done during expansion of the system. और E को बेस 10 में कन्वर्ट करो तो 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे. 2.303 ये रूल है. अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, E जो है बेस 10 में कन्वर्ट होगा. क्योंकि लॉगरिथम टेबल जो देखना है मुझे, वो बेस 10 में सब है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में. उसको बोलते हैं बेस 10. अगर 2.303 मल्टीप्लाई करोगे तो E कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में. तो दिस इज व्हाट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ व्हाट सिस्टम फ्रॉम V1 to V2. वर्क डन इज पॉजिटिव एंड आइसोथर्मल वर्क डन इज 2.303 mu RT log 10 log V2 by V1 बेसिस 10 और log V2 by V1. क्लियर हुआ सभी को? अरे सभी को क्लियर हो गया?
अरे कंप्रेशन में क्या आ रहा है, कंप्रेशन में 1 की जगह 2 आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, देखो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, अरे V2 टू V1 कंप्रेशन होगा, V2 टू V1 कंप्रेशन होगा, V2 टू V1 जाएगा, V2 टू V1 जाएगा, मतलब 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आ रहा है, ये 1 ये 2 होगा, ये 1 ये 2 होगा, ये 1 ये 2 होगा, एंड फाइनली ये 1 ये 2 होगा, मतलब माइनस कर लो तो उल्टा हो जाएगा, V2 टू बाई V1 माइनस कर लिया, तो कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। लिखो work done in isothermal compression is given by W is equal minus 2.303 mu RT into log base 10 V2 by V1। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो वर्क डन मुझे मिल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे आइसो क्या